Hello friends, today I will discuss about the topic chemical equation. What is chemical equation? Chemical equation is the representation of a chemical reaction. Chemical equation is a representation of a chemical reaction in the form of formula and its symbol is known as chemical equation. What is chemical equation? It is the representation of chemical reaction in the form of symbol and formula is known as chemical equation. इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हो और आपसे आप फार्मूला या सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल, जिंक react with sulfuric acid, they will form zinc sulfate plus hydrogen gas. This is not a chemical equation because here word is used. Zinc, symbol of zinc is Zn and the formula of sulfuric acid is H2SO4. Gives out what is the formula of zinc sulfate? ZnSO4 plus H2. So zinc is solid form, sulfate in liquid form, zinc sulfate in liquid and H2 in gas form. This is a chemical equation because here we use the symbol as well as formula. So this is a chemical equation. Now the second example, hydrogen plus oxygen gives out water. Now the symbol of this hydrogen symbol H2, oxygen symbol O2 and water H2O. If we balance this equation, then so this is a chemical equation. Means अगर किसी भी chemical reaction को हम लोग फार्मूला, अगर किसी भी chemical reaction को अगर हम फार्मूला और उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। नाउ द केमिकल इक्वेशन may be balanced or unbalanced. Means chemical equation is present in unbalanced form or balanced equation. What is unbalanced chemical equation? Means those chemical equation, as you know, when chemical reaction occur, here is a reactant and here is a product. Means those chemical reaction in which the number of atoms of different element are not equal in reactant
and product. Example, H2 plus O2 gives out H2. See here, in case of reactant, the number of hydrogen is 2. The number of atom of hydrogen is 2. Here, the number of hydrogen of atom is also 2. Means hydrogen के atom 2 है. Here, hydrogen के atom is also 2. But oxygen is 2 and here oxygen is 1. This is balanced or unbalanced? This is unbalanced because the number of atoms of elements, number of atoms of different elements are not equal to the number of atoms of elements in product side. Listen again. What is unbalanced chemical equation? Those chemical equation in which the number of atom of different element is not equal in reactant and product साइड. मीन्स एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं होंगे. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होंगे. तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. और जैसे एग्जांपल देखें, जैसे this is first example. Now the second, N2 plus H2 gives out NH3. यहां पर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के एटम 2 है, but here nitrogen is 1 and hydrogen is 3. It is balanced or unbalanced? This is unbalanced because the number of atoms of different element in reactant side are not equally product side. So this is a unbalanced chemical equation. Now discuss about the balanced chemical equation. Means those chemical reaction in which the number of atoms of different element in reactant side is equal to the number of atoms of different element in product side. Means those chemical equation in which the number of atoms of different element in reactant and product side are equal is called balanced chemical equation. Example, Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2. See here, number of Zn atom is 1, hydrogen is equal to 2, sulfur is equal to 1, oxygen is equal to 4. Clear? But here zinc is equal to 1, sulfur is equal to 1, oxygen is equal to 4 and hydrogen is equal to 2. अब आप यहां से देख सकते हो जिंक हियर 1 है, यहां भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4. Means this is a balanced chemical equation. Means those chemical equation in which the number of atoms of different element in reactant side is equal to the number of atoms in product side is equal. So this type of reaction is called balanced chemical equation. अब how we balance the chemical equation? अगर हमारे पास unbalanced chemical equation given है
तो उसे हम बैलेंस कैसे करें? मीन्स बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, balancing of chemical equation. In your syllabus there is only one method is given, but in higher class various methods are applicable for balancing this equation. Here in this class only hit and trial method is used. By which method? Hit and trial method. क्या है ये hit and trial method? Let's see with an example. If we take an example, number 1, N2 plus H2 gives out NH3. Formation of ammonia. अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप जो भी नंबर यूज करेंगे, यू राइट only here, not here, not here, no anywhere, only you write before the formula of a substance. यहां पर नाइट्रोजन 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 1 है। अब हमें यहां पर 2 करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। अब आप यहां पर 2 नहीं लिख सकते, आपको नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा। अब यहां पर नाइट्रोजन 2 हो गया, यहां पर नाइट्रोजन 2 हो गया, मींस नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर ये जो 2 डिजिट यूज किया गया है, 2 डिजिट इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन। Means here the hydrogen is 3 into 2, 3 into 2, 3 2 जा 6, means यहां पर जो अब हाइड्रोजन पहले 2 नहीं था, तो यहां पर हाइड्रोजन केवल 3 था, लेकिन जब आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 जा 6, हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए? 6। यहां पर हाइड्रोजन आपके 2 ही है। अब हमें कुछ ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे इधर भी 6 हो जाए। तो अब एक काम करिए, आप इधर जितने भी हाइड्रोजन हो और इधर जितने हाइड्रोजन उसको उतने से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 जा 6 मींस द नंबर इज 3। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन कितने हो गए हैं? 2। नाइट्रोजन 2 हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। यहां पर चेक करिए, नाइट्रोजन 2 है, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी 6 है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस, दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज Na plus O2, sodium plus oxygen gives out sodium oxide N2O। अब इसको बैलेंस करिए। Na 1 एटम है, यहां पर Na 2 एटम है, तो क्या करें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि सोडियम बैलेंस हो जाए। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करें, अब यहां पर 2 करने के लिए यहां पर 2 करना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अब सोडियम कितना हो गया? 4। अब यहां पर 2 ना लिख करके बल्कि हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर 4 लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये सोडियम भी बैलेंस हो जाए। तो सोडियम यहां पर कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। यहां पर सोडियम कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए नेक्स्ट देखिए H2O2 gives out H2O plus oxygen, means
दिस इज फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक हुआ H2O एंड O, H2O एंड O, वाटर एंड ऑक्सीजन में ये ब्रेक हुआ। अब देखो हम इसको कैसे बैलेंस करें। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ रिएक्टेंट साइड 2 है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन इस समय बैलेंस है। अब ऑक्सीजन चेक करिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम। मतलब इस कंडीशन में जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो देखिए हम कैसे इसको बैलेंस करते हैं। देखिए अगर यहां पर हम 2 कर दें तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया और यहां पर 2 हो गया, मतलब अगर यहां पर 2 हम कर दें तो ये ऑक्सीजन 2 2 जा 4 हो जाएगा। मींस 2 ऑक्सीजन यहां पर है और 2 ऑक्सीजन यहां मिलके 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक करिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन मींस यहां पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन भी यहां पर 2 2 जा 4 हो गया और 2 is also for oxygen, means oxygen is also 4. So this reaction is balanced. फिर से नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड gives out plus HCl gives out MgCl2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अब यहां पर चेक करिए, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, पॉज कर लीजिए बटन एंड देन यू ट्राई, आफ्टर दैट यू सी द आंसर ऑफ दिस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन गिव द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। अब इसको हमें बैलेंस करना है, देखो कैसे बैलेंस करेंगे। यहां मैग्नीशियम है 1 है, यहां भी मैग्नीशियम 1 है, मतलब मैग्नीशियम कोई टेंशन नहीं, मैग्नीशियम बैलेंस है। अब चेक करें, अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और 2 हाइड्रोजन के लिए भी। मतलब यहां पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अब यहां 1 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 और 1 मिलकर के कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 1। यहां पर चेक करो, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन आपको यहां दिख रहा होगा 2 है, और हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा 2 है, ऑक्सीजन 1। अब इसे कैसे हम बैलेंस करें। मैग्नीशियम को कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैग्नीशियम बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसे कैसे बैलेंस किया जाए, देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन है, अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कोई टेंशन नहीं, हाइड्रोजन कोई टेंशन नहीं। अब आया ऑक्सीजन को देखिए, अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। मींस 2 ऑक्सीजन उधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, मतलब अब यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, मतलब ऑक्सीजन यहां पर भी 2 हो चुका है। लेकिन अब यहां देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, अब लेकिन यहां पर हाइड्रोजन अभी कितना है, 3 है, 3 है। अब क्या करें, अब हाइड्रोजन को यहां पर रोकते हैं। अब दूसरा एलिमेंट चेक करें, यहां पर क्लोरीन 2 है, यहां पर क्लोरीन 1 है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। यहां पर क्लोरीन भी 2 है, मतलब बैलेंस। अब यहां हाइड्रोजन चेक करिए, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर के 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, मतलब यहां पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया। मैग्नीशियम 1 है और मैग्नीशियम यहां पर भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है भाई साहब, और ऑक्सीजन इधर भी 2 ही है, और क्लोरीन 2 है और क्लोरीन भी यहां पर 2 है, मतलब ये रिएक्शन अब पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। If now the take
अनदर एग्जांपल, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट Fe2O3। अब देखिए इसको बैलेंस करिए। आप कोशिश ये करिए कि सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने एलिमेंट है सबको बैलेंस करिए, फिर लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 2 है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट साइड एक आयरन है और प्रोडक्ट साइड 2 आयरन है, मतलब यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आयरन का केस खत्म, क्योंकि आयरन दोनों साइड बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन की चर्चा करें, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और इधर 3 है। अब क्या करें, मैंने बताया था, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये एक दूसरे से डिवाइड ना होने वाले नंबर है। तो इस तरीके की जब आपकी प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करिए, जो इधर नंबर लिखा हो इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो इधर लिखा हो उसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कितना है, जैसे 2 and 3 नॉट डिवाइडेड, मीन नॉट फुल्ली डिवाइडेड, मीन्स 2 3 से फुल्ली डिवाइडेड नहीं है। तो अब आप इस नंबर को 3 को उठा करके यहां पर प्लेस कर दीजिए और 2 को उठाकर यहां प्लेस कर दीजिए। अब चेक करिए, देखिए अब आपका 3 2 6 ऑक्सीजन हो चुका है और 2 3 6 ऑक्सीजन हो चुका है, लेकिन अब आयरन की कहानी गड़बड़ होगी, क्योंकि अब आयरन यहाँ पर 2 2 4 है और यहाँ पर 2 ही है। अब करना कुछ नहीं, इसको 2 को हटा करके यहाँ पर 4 कर देगा, तो यहाँ पर 4 आयरन हो गया, 2 2 4 आयरन हो गया, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल प्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो देखिए किस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पर एल्युमिनियम 1 है, मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने एलिमेंट पहले उनको आप बैलेंस कर लीजिए। एल्युमिनियम 1 है भाई साहब, एल्युमिनियम यहाँ पर 2, करना कुछ नहीं आपको, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, अब एल्युमिनियम बैलेंस हो गया आपका। अब चेक करिए ऑक्सीजन को, अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये ब्रैकेट्स के बाहर है, मतलब 3 is also for oxygen and also for hydrogen and 2 also for oxygen, 2 also for hydrogen, मतलब 3 2 6 ऑक्सीजन है और 3 2 6 हाइड्रोजन, मतलब एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन है और 3 2 6 आपके हाइड्रोजन है। एल्युमिनियम यहाँ पर बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑक्सीजन चेक करें, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। अब 3 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना है आपके पास, अब 2 आया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, आई एम सॉरी आई एम नॉट सीइंग हियर, सो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 और एक 4, आपके पास 4 ऑक्सीजन है, अभी 2 ऑक्सीजन आपके पास लेस है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, आपको 6 है। अब आप क्या करें, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो कितने हो गए, देखिए 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर के मीन 2 और 3 5 हो गए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं आपके 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 3 2 6 मीन्स अब आप क्या करिए, एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन। अब यहां पर आप काम करिए कैसे कि यहां पर एल्युमिनियम आपका बैलेंस हो चुका है, अब ऑक्सीजन यहां पर 3 है आपका, यहां पर 6 है। अब अगर आप यहां पर 3 कर दीजिए तो देखिए 3 ऑक्सीजन यहां हो गए और 3 ऑक्सीजन यहां हो गए, मिलकर के 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए आपके। हाइड्रोजन चेक करिए, 3 2 6 हाइड्रोजन एंड 3 2 6 है, मतलब दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस। अब ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल,
NH3 plus copper oxide gives out CuN2 plus H2, Cu plus N2 plus H2। अब इसे बैलेंस करना है। देखिए यहां पर नाइट्रोजन 1 है, यहां पर नाइट्रोजन 2 है। अब क्या करें, यहां पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 नाइट्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। अब कॉपर चेक करिए, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, बैलेंस है। अब ये हाइड्रोजन चेक करिए, 3 2 6 हाइड्रोजन है, यहां पर केवल 2 हाइड्रोजन। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 6 हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो 2 को 6 से डिवाइड किया तो आएगा आपके पास 3 और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। अब 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस होते, 3 ऑक्सीजन है। अब यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ऑक्सीजन हो गए आपके। और कॉपर कितने हैं, 3, और यहां पे अब आपका ये रिएक्शन भी बैलेंस। तो इस तरीके से आप बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू post your question in my comment box and after that I give your answer. Thank you for watching this video. Like this video and subscribe my channel. Thank you.